اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس میں طرح طرح کی مخلوقات بسائیں۔ ہم انسان جنہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک اور مخلوق بھی بستی ہے جسے ہم جنات کہتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کی طرح جنات میں بھی نیک اور بد، اچھے اور برے پیدا کیے ہیں۔ جب انسان کا سامنا کسی نیک جن سے ہوتا ہے تو شاید اسے کوئی گزند نہ پہنچے، مگر جب واسطہ کسی شریر اور بدفطرت جن سے پڑ جائے تو انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ وہ تجربہ و خوف اس کی روح میں ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ عمر بھر اس کا سایہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے ہمارے بڑے بوڑھے ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں خاص کر ویران اور سنسان راستوں پر سفر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جب اندھیرے کی مخلوق اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور اگر غلطی سے بھی ان سے آمنا سامنا ہو جائے تو اس کا نتیجہ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہمیں اسلام آباد سے امان اللہ صاحب نے بھیجی ہے۔ یہ کہانی ان کے اپنے سگے ماما کی ہے جو پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ یہ کوئی 17-18 سال پرانی بات ہے۔ اس رات ان کے ماما کے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ ایک ایسی خوفناک رات تھی جس کا تصور بھی آج ان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ میرا نام امان اللہ ہے اور میرا تعلق تو مردان شہر سے ہے، لیکن روزگار کے سلسلے میں اسلام آباد میں مقیم ہوں۔ یہ کہانی میرے ماما کی ہے جو ہمارے خاندان میں اپنی ہمت اور محنت کے لیے مشہور تھے۔ ہمارے نانا جی نے ٹیکسیوں کا کاروبار شروع کیا تھا اور ان کے بعد اس کام کو میرے ماما نے سنبھال لیا تھا۔ وہ نہ صرف اس کاروبار کو بہترین طریقے سے چلاتے تھے بلکہ خود بھی ٹیکسی چلانے کا بے حد شوق رکھتے تھے۔ گھر والے انہیں اکثر منع کرتے کہ اب کاروبار اتنا پھیل گیا ہے، تمہیں خود ڈرائیونگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مگر وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے تھے، ہاتھ پیر چلتے رہنے چاہیے ورنہ انسان کو جھنگ لگ جاتا ہے۔ ان کا یہی فلسفہ تھا اور وہ اس پر سختی سے کاربند تھے۔ ماموں اکثر پرائیویٹ بکنگز پر لمبے سفر پر نکل جاتے تھے۔ ان میں ہمت اور حوصلہ بھی کمال کا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ وہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے کسی دوسرے شہر جاتے اور بنا آرام کیے اسی روز واپس بھی آ جاتے۔ ان کی صحت اور مضبوط اعصاب پر سبھی کو رشک آتا تھا، مگر ایک دن ایک سفر کے دوران ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کی ہمت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، اور اس کے بعد انہوں نے ٹیکسی کا اسٹیئرنگ پھر کبھی نہیں تھاما۔ ہوا کچھ یوں کہ ماموں کو مردان سے مانسہرہ کے لیے ایک سواری ملی۔ ایک خاندان نے اپنی کچھ تقربات کے لیے ان کی گاڑی بک کی تھی۔ ماموں دوپہر کے وقت انہیں لے کر مردان سے روانہ ہوئے۔ وہ اس سفر کے لیے بہت خوش بھی تھے کیونکہ مانسہرہ سے لگ بھگ 45 منٹ کی مسافت پر پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان کی بہن یعنی ہماری خالہ رہتی تھیں۔ ماموں نے سوچا کہ کام کے ساتھ ساتھ بہن سے بھی ملاقات ہو جائے گی کیونکہ وہاں ویسے بھی کم ہی جانا ہوتا تھا۔ سفر بہت معمول کے مطابق اور پرسکون تھا۔ یہ راستہ ماموں کے لیے نیا نہیں تھا، وہ پہلے بھی کئی بار اس شاہراہ سے گزر چکے تھے، لیکن عام طور پر ان کا سفر دن کی روشنی میں ہوتا تھا۔ رات کے وقت اس ویران اور پہاڑی علاقے میں سفر کرنے کا انہیں زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ مانسہرہ پہنچ کر انہوں نے سواری کو ان کی منزل پر اتارا اور ان سے فارغ ہو کر اپنی بہن کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ خالہ کا گھر مرکزی سڑک سے ہٹ کر وادی کے اندر کی طرف تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، آبادی کم ہوتی جا رہی تھی اور قدرتی حسن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بکھرا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے کو تھا، سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنگی اور گہرے نیلے رنگ بکھر رہے تھے۔ ماما نے اپنی گاڑی ایک کچے راستے پر موڑی جو کھیتوں اور باغات کے بیچ سے ہوتا ہوا خالہ کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ اس راستے پر گاڑی آخر تک نہیں جا سکتی تھی، انہیں ایک مخصوص جگہ پر گاڑی کھڑی کر کے باقی کا فاصلہ پیدل طے کرنا ہوتا تھا۔ انہوں نے گاڑی روکی، بچوں کے لیے لائے ہوئے تحفے اور کچھ پھل گاڑی سے نکالے اور اس تنگ پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، بس ہوا کی سرسراہٹ اور دور کہیں کسی جانور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ انہیں اپنے پیچھے سے کسی جانور کے گررانے کی آواز سنائی دی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، مغرب کا وقت تھا اور یہ پہاڑی علاقہ تھا، یہاں جنگلی جانوروں کا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ماما نے زیادہ توجہ نہ دی اور چلتے رہے، لیکن وہ گررانے کی آواز بند ہونے کے بجائے قریب آتی محسوس ہوئی۔
अब इसमें एक अजीब सी वहशत और गुस्सा भी शामिल हो गया था। मामा ने एहतियातन गर्दन मोड़कर पीछे देखा, मगर दूर तक फैले खेतों और झाड़ियों में उन्हें कुछ भी नजर न आया। वह थोड़ा हैरान हुए, मगर ये सोचकर आगे बढ़ने लगे कि शायद कोई लोमड़ी या गीदड़ होगा जो झाड़ियों में छुप गया हो। वो दोबारा आगे की तरफ मुतवज्जा हुए तो गुर्राने की आवाज़ फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज़्यादा करीब और वाज़ेह। उन्होंने फिर तेज़ी से मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। अब मामू को थोड़ी तशवीश होने लगी। आवाज़ तो बिल्कुल उनके पीछे से आ रही थी, मगर कोई जानवर नज़र क्यों नहीं आ रहा था। इस बार उन्होंने ज़्यादा देर नहीं की और तेज़ी से कदम उठाने लगे। इस बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी कदमों से उनके पीछे पीछे चल रहा है। पत्तों की सरसराहट और कदमों की छाप साफ सुनाई दे रही थी, मगर मामू ने इस बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए तेज तेज चलते हुए खाला के घर पहुंच गए। खाला और खालू उन्हें अचानक देखकर बहुत खुश हुए। उनके चेहरों पर मामू की आमद की खुशी दीदनी थी। खाला फौरन उनके लिए खाना गर्म करने लगी और खालू उनके पास बैठकर हालचाल पूछने लगे। खाना खाने के बाद जब सब सहन में बैठे चाय पी रहे थे तो मामू ने उनसे उस वाक़े का जिक्र किया जो खेतों वाले रास्ते पर उनके साथ पेश आया था। ये सुनकर खालू के चेहरे पर एक संजीदगी सी छा गई। वो कहने लगे, तुमने बहुत अच्छा किया जो दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन पहाड़ों में कुछ शरीर मखलूक़ात का बसेरा है। गांव वाले उन्हें खबीस कहते हैं। वो अक्सर रात के वक्त मुसाफिरों को तंग करती हैं और अमूमन कुत्तों या दूसरे जानवरों की शक्ल में नज़र आती हैं। इसीलिए हम लोग मगरिब के बाद बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलते। इन वीरानों में इनका राज होता है। फिर खालू ने उन्हें एक किस्सा सुनाते हुए बताया। कुछ महीनों पहले गांव के एक बहुत नेक और बुजुर्ग शख्स शाम के वक्त किसी काम से वादी की तरफ गए थे। रास्ते में उन्हें पहाड़ पर एक गार नज़र आया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस गार में से एक अजीब सी रोशनी फूट रही थी। उन्हें तजस्सुस हुआ तो वो उस तरफ चल पड़े। जब करीब पहुंचे तो देखा कि गार सोने और जवाहरात से भरा पड़ा है। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो फौरन गांव वापस आए और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उस जगह पहुंचे, मगर जब वो वहां पहुंचे तो न वहां कोई गार था और न ही सोना, बस एक छटियल पहाड़ था। हमारे गांव में ये बात भी मशहूर है कि यहाँ कहीं कोई पुराना खजाना दफन है जिसकी हिफाजत यही जिन्नात करते हैं, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जानता है। ये बातें सुनकर मामू को थोड़ी वहशत तो हुई, मगर उन्होंने ज़्यादा ध्यान न दिया। रात के करीबन 11 बजे जब बातें ख़त्म हुईं तो मामू ने वापस मर्दान जाने के लिए इजाज़त मांगी। खाला और खालू ने उन्हें बहुत रोका। बेटा, इतनी रात में सफ़र मत करो। ये पहाड़ी और वीरान रास्ते हैं, रात को सफ़र करना ठीक नहीं। सुबह सवेरे रोशनी में निकल जाना। मगर मामू अपनी ज़िद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मुझे रात में सफ़र करने की आदत है, मैं रुक नहीं सकता। सुबह मर्दान में कुछ ज़रूरी काम है। जब खालू ने उनकी ज़िद देखी तो वो कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर उन्हें गाड़ी तक छोड़ने आए। उन्होंने मामू को दुआओं के साए में रुखसत किया और वो अपनी गाड़ी में वहाँ से निकल पड़े। अब मामू गांव के कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए मानसहरा की मरकजी शाहरा की तरफ जा रहे थे। मौसम अचानक बदलने लगा था। आसमान पर गहरे बादल छा गए थे और ठंडी हवा चल रही थी। बादलों की गरज से ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त तेज बारिश शुरू हो जाएगी। रात इतनी काली और अंधेरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। उनकी गाड़ी भी पुरानी थी और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, जो अंधेरे को बस थोड़ा बहुत ही चीर पा रही थी। वो सुकून से गाड़ी चलाते हुए उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहे थे कि अचानक रात के अंधेरे में सड़क के बीचों बीच उन्हें कोई चीज़ चलती हुई नजर आई। वो कोई जानवर नुमा मखलूक थी। अजीब बात यह थी कि मामू गाड़ी चला रहे थे और मुसलसल आगे बढ़ रहे थे, मगर वो जानवर नुमा चीज़ उनकी गाड़ी से फासला तकरीबन 15 फुट के फासले पर ही चल रही थी। फासला कम ही नहीं हो रहा था। जितना मामू गाड़ी को तेज़ करते वो चीज़ भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ती जाती, मगर फासला वहीं रहता। ये बात बहुत अजीब और गैर फितरी थी। उसूलन तो गाड़ी को उसके करीब पहुंच जाना चाहिए था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज़ हवा में तैर रही हो। मामू ने गौर से देखने की कोशिश की तो उन्हें उसके पीछे एक लंबी मोटी और बालों वाली दुम जैसी कोई चीज़ नजर आई जो सड़क पर रगड़ खा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी लोमड़ी की दुम हो, मगर ये उससे कम अज कम 3 गुना ज़्यादा लंबी और घनी थी। मामू की गाड़ी की हेडलाइट्स, जो कि मध्यम ज़रूर थीं,
जब उस पर पड़ रही थीं तो उसका पिछला हिस्सा तो नजर आ रहा था, मगर उसका सर या आगे का धड़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक भारी भरकम, बदसूरत और भयानक सा पिछला हिस्सा था जो सड़क पर अजीब अंदाज में हरकत कर रहा था। ये मंजर देखकर मामू को सख्त सर्दी में भी पसीने आने लगे। जो कुछ वो देख रहे थे वो बिल्कुल गैर मामूली और नाकाबिले यकीन था। ज़रा तसव्वुर करें, रात का गहरा अंधेरा, चारों तरफ पहाड़ और घने दरख्त, एक सुनसान सड़क पर अकेली गाड़ी और उसके सामने एक ऐसी बदसूरत मखलूक जो न तो जानवर लग रही थी और न ही कोई और जानी पहचानी चीज़। और सबसे खौफनाक बात यह कि गाड़ी चल रही है मगर उससे फैसला कम नहीं हो रहा। मामू का दिल खौफ से धड़कने लगा। उनके जहन में खालू की बताई हुई बातें घूमने लगीं। ये क्या बला है और ये मेरे करीब क्यों नहीं आ रही? अब वो जानवर नुमा चीज़ अपनी पिछली टांगों पर एक गधे की तरह सड़क के बीच में बैठ गई। मामू ये सब गाड़ी चलाते हुए देख रहे थे। वो परेशान हो गए कि गाड़ी रोकें या चलाते रहें। उसके बैठ जाने के बावजूद फासला अब भी वही था। मामू पर खौफ इस कदर तारी हो गया कि उन्हें लगा शायद उनका दिमाग काम करना छोड़ गया है या ये सब उनका वहम है। उन्होंने अपने सर और चेहरे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ फेरना शुरू कर दिया ताकि होश में आ सकें। अचानक वो चीज़ अपनी पिछली टांगों पर खड़ी हुई और देखते ही देखते उसने अपनी शक्ल बदलनी शुरू कर दी। वो एक लंबे बालों वाले इंसान की शक्ल इख्तियार कर गई जिसका कद आम इंसानों से कहीं ज़्यादा था। और फिर इससे पहले कि मामू कुछ समझ पाते वो हौला हवा में तहरील हो गया और सामने सिर्फ अंधेरी सड़क बाकी रह गई। मामू बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से जिक्र ओ अजगार शुरू कर दिया। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पिछला मंजर देखने वाले शीशे, रियर व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखें। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उनका वाहिद मकसद अब जल्द अज जल्द उस खौफनाक जगह से निकलकर मरकज़ी शाहराह पर पहुंचना था। अभी उन्होंने 15 मिनट ही गाड़ी चलाई होगी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बूंदें तेज़ी से शीशे पर बरसने लगीं। उसी लम्हे उन्हें एक ज़ोरदार खटाक की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ टूटी हो, और उनकी गाड़ी एक झटके से बीच सड़क पर रुक गई। गाड़ी का इंजन चल रहा था, हेडलाइट्स भी जल रही थीं, मगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। मामू ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला और नीचे उतर कर देखा। बारिश की फुहार में उन्होंने टॉर्च की रोशनी में जो मंजर देखा उसने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। गाड़ी के अगले पहियों के बीच में लोहे की एक मोटी रॉड फंसी हुई थी और उसकी वजह से गाड़ी का एक्सल टूट चुका था। ये एक इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल थी। अभी कुछ देर पहले ही उनका सामना एक माफूक उल फितरत मखलूक से हुआ था और अब उनकी गाड़ी एक ऐसी जगह पर ख़राब हो गई थी जहां दूर दूर तक मदद का कोई इम्कान नहीं था। उन्हें फ़ौरन एहसास हुआ कि ये लोहे की रॉड खुद ब खुद यहाँ नहीं आ सकती। जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उन्हें सड़क पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। उनका दिल डूबने लगा। उन्हें यकीन हो गया कि ये रॉड जानबूझकर वहाँ रखी गई थी। शायद उसी मखलूक ने उन्हें यहाँ रोकने के लिए ये जाल बिछाया था। बारिश अब तेज़ हो रही थी, बादल ज़ोर से गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। गाड़ी में बैठे रहें और सुबह का इंतज़ार करें या मदद की तलाश में आगे बढ़ें। सर्दी भी शिद्दत इख्तियार कर रही थी और उस जगह मोबाइल फ़ोन के सिग्नल भी नहीं थे कि किसी को इत्तला कर सकें। मामू ने हिम्मत करके गाड़ी को धक्का देकर सड़क के किनारे किया। उसमें बैठकर दरवाजे लॉक कर लिए और दुआ करने लगे कि कोई फरिश्ता मदद के लिए आ जाए। मगर उन्हें मालूम था कि उस वीरान रास्ते पर रात के वक्त किसी का गुजरना नामुमकिन के करीब है। खौफ और बेबसी के आलम में उनके पास वहाँ इंतज़ार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। मामू गाड़ी में बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे। बाहर बारिश पूरी शिद्दत से बरस रही थी और आसमान पर चमकने वाली बिजली की रोशनी में घने दरख्तों के साए किसी देव की तरह खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। हर गरज के साथ उनका दिल उछलकर हल्का में आ जाता। उनका जहन उस अजीबो गरीब मखलूक और टूटी हुई गाड़ी के ख्यालों में उलझा हुआ था। खौफ, सर्दी और थकान के मिले जुले एहसासात उन पर गालिब आ रहे थे। इंतज़ार करते करते न जाने कब उनकी आंख लग गई। वो शायद थोड़ी ही देर सोए होंगे कि शदीद सर्दी की लहर से उनकी आंख खुल गई। उनके दांत बज रहे थे और पूरा जिस्म कांप रहा था। गाड़ी का हीटर काम नहीं कर रहा था और बाहर की ठंडक अंदर तक सरायत कर रही थी। उन्होंने अपने हाथों को आपस में रगड़कर गर्म करने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो सारी रात इसी तरह गाड़ी में बैठे रहे तो सर्दी से अकड़ जाएंगे। उन्हें कुछ न कुछ करना था।
बारिश अब कुछ हल्की होकर फुवार में बदल चुकी थी। उन्होंने हिम्मत जमा की और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। चारों तरफ घुप अंधेरा और मुकम्मल सन्नाटा था, सिवाय हवा की साई साई और दूर कहीं गीदड़ों के चीखने की आवाज़ों के। उन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई कि शायद कोई झोंपड़ी या पनाहगाह मिल जाए जहां वो रात गुजार सके। तभी उनकी नज़र सामने वाले पहाड़ पर पड़ी। पहाड़ की चोटी के करीब उन्हें एक मध्यम सी रोशनी नजर आई, जैसे किसी घर के बाहर लालटेन जल रही हो। ये रोशनी देखकर उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने सोचा कि हिम्मत करके वहां तक पहुंचना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। शायद कोई भला मानुस उन्हें आज रात के लिए पनाह दे दे। सुबह होते ही वो किसी मैकेनिक का बंदोबस्त कर लेंगे। ये सोचकर उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और उस पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। बारिश की वजह से मिट्टी और पत्थर फिसलने वाले हो गए थे। वो दरख्तों की शाखों और झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर रास्ता बनाते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो आधा पहाड़ ही चढ़े होंगे कि उन्हें सीटियों की तेज आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उन्हें देखकर सीटी बजा रहा हो। पहले तो उन्होंने तसल्ली करके नज़रअंदाज किया, ये सोचकर कि शायद तेज़ हवा के दरख्तों से टकराने की वजह से ऐसी आवाज़ आ रही है, मगर वो सीटियाँ लम्हा ब लम्हा तेज़ और वाज़ेह होती जा रही थीं। अब वो इस बात को मज़ीद नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उनके कदमों में खुद ब खुद तेज़ी आ गई। वो जल्द से जल्द उस घर तक पहुंचना चाहते थे, इससे पहले कि बारिश फिर से तेज़ हो जाए। अभी सीटियों की आवाज़ें थमी नहीं थीं कि उन्हें ढोल बजने की आवाज़ आने लगी। एक अजीब गैर सरीली और बेहंगम ताल पर कोई ढोल पीट रहा था। ये आवाज़ उस वीराने में उस कदर गैर मुतवक्को और खौफनाक थी कि मामा एक लम्हे के लिए रुक गए और चारों तरफ देखने लगे, मगर घने दरख्तों और अंधेरे के सिवा कुछ न था। उस जगह से नीचे देखने पर उन्हें अपनी गाड़ी एक छोटे से खिलौने की तरह नजर आ रही थी। अब वापस जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वे आधे से ज़्यादा पहाड़ी चढ़ चुके थे। उन्होंने दोबारा उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब वह घर पहले से ज़्यादा साफ नज़र आ रहा था, लेकिन तभी उन्हें अपने बाएं हाथ पर कुछ फासले पर एक और रोशनी नज़र आई। वहाँ दरख्तों के झुंड के पास आग जल रही थी। उन्हें लगा कि शायद कुछ मकामी लोग सर्दी से बचने के लिए आग जलाकर बैठे हैं। उन्होंने सोचा कि घर तक जाने से बेहतर है कि उन लोगों के पास चला जाऊं और उनके साथ बैठकर रात गुजार लूं। ये सोचकर वे उस आग की तरफ मुड़ गए। जैसे जैसे वे करीब जाते गए, ढोल की आवाज़ के साथ साथ उन्हें सितार बजने की आवाज़ भी आने लगी। संगीत में एक अजीब सी वहशत और जुनून था, जो किसी महफिल से ज़्यादा किसी शैतानी रस्म का हिस्सा लग रही थी। वे झाड़ियों से बचते बचाते आगे बढ़ते रहे और अब उन्हें उस आग के गर्द कुछ लंबे लंबे साए हरकत करते नजर आए। उनका दिल खौफ से तेजी से धड़कने लगा। रोंगटे खड़े हो गए, मगर तजस्सुस और मजबूरी उन्हें आगे बढ़ने पर उकसा रही थी। जब वह उन दरख्तों के करीब पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वह उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। वहां आग के गर्द 4 मखलूकात बैठी थीं। 3 की पुश्त मामा की तरफ थीं, जबकि चौथी मखलूक जो ढोल बजा रही थी वह उनके सामने थी। मामा ने हिम्मत करके उन्हें आवाज़ दी, भाई कोई है? उनकी आवाज़ सुनकर वे तीनों एक साथ पलटे। जैसे ही मामा की नज़र उनके चेहरों पर पड़ी, उनके हलक में चीख फंस कर रह गई। उन सब के चेहरे पिचके हुए और मस्क शुदा थे। एक के सर पर जानवरों की तरह लंबे लंबे सिंग थे। दूसरे के माथे के बीचों बीच एक तीसरी आंख थी, जो किसी ताज़ा जख्म की तरह सुरख और खून आलूद लग रही थी। तीसरी एक औरत नुमा मखलूक थी, जो इंतहा से ज़्यादा बदसूरत और भयानक थी, और उसका जिस्म बेढंग और जगह जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। चौथी मखलूक जो ढोल बजा रही थी, मामा की उस पर बस एक लम्हे के लिए नज़र पड़ी। उसकी आंखों में पुतलियाँ नहीं थीं, सिर्फ सफ़ेद डीले थे, और वह एक अजीब और वहशतनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था, जिससे उसके नुकीले दांत नज़र आ रहे थे। उन सब के साथ एक बहुत बड़ा स्याह कुत्ता भी बैठा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। मामा की बस उन सब पर चंद सेकंड के लिए ही नज़र पड़ी होगी। उस मंजर की दहशत ने उनके होशो हवास छीन ली। उन्होंने एक फलक शिगाफ चीख मारी और बगैर सोचे समझे उल्टे कदमों पहाड़ पर ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। वह दीवानावार भागते गए, झाड़ियों और पत्थरों से टकराते हुए बस उस जगह से दूर जाना चाहते थे। ऊपर चढ़ते हुए अचानक उनका पांव फिसला और वह अपना तवाजुन बरकरार न रख सके और लुढ़कते हुए पहाड़ की दूसरी ढलवान से नीचे जा गिरे।
गिरते हुए उनका सर एक पत्थर से टकराया और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब आंख खुली तो वह एक बिस्तर पर थे। ये उसी गांव के कुछ मकामी लोग थे, शायद उसी घर वाले जहां लालटेन जल रही थी, जिन्होंने उन्हें सुबह के वक्त बेहोश पाया था। वह बता रहे थे कि जब मामा उन्हें मिले तो वह बुरी तरह ठंड से कांप रहे थे और एक दरख्त के तने के पास इस तरह सिमटे पड़े थे जैसे कोई बच्चा माँ के पेट में होता है। उन्होंने अपने घुटने अपने सीने से लगाए हुए थे और सर उनके बीच में छुपाया हुआ था। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था और होंठ सूख कर पपड़ी बन चुके थे। वह कुछ कहना चाहते थे मगर उनके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह बस एक मछली की तरह अपना मुंह खोलते और फिर बगैर कुछ कहे बंद कर देते। गांव वालों ने उन्हें किसी तरह मानसेहरा पहुंचाया, जहां से हम लोग उन्हें वापस मर्दान ले आए। मामा की हालत बहुत ख़राब थी। वह न कुछ बोल पाते थे न खुद से कुछ खा पी सकते थे। उनके बाल तेज़ी से गिरने लगे। एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके सर पर जगह जगह से बालों के गुच्छे गायब हो गए, जैसे किसी ने बेदर्दी से नोच दिए हों। और फिर जो बचे खुचे बाल थे वह सफ़ेद होना शुरू हो गए। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर अंदर उनका पूरा सर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो गया। वह दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे थे। हमने उन्हें शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया मगर कोई भी उनकी बीमारी की तशखीस न कर सका। तमाम टेस्ट नॉर्मल आते थे लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें कोई शदीद सदमा पहुंचा है जिसकी वजह से उनका जिस्म और दिमाग मफलूज हो गया है। तकरीबन 4 हफ्तों की मुकम्मल खामोशी के बाद मामा ने आहिस्ता आहिस्ता टूटे फूटे अल्फाज बोलना शुरू किए और फिर जैसे जैसे दिन गुजरते गए उनकी हालत बेहतर होती चली गई। उन्हें पूरी तरह से सेहत याब होने में 3 महीने लग गए। ये वह वक्त था जब उनकी याददाश्त और बोलने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर बहाल हुई और उन्होंने हमें उस रात की पूरी कहानी सुनाई। हम सब ये सुनकर सकते में आ गए कि यह सब कुछ 3 महीने पहले हुआ था और हमें आज पता चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मामा वक्त के साथ ठीक हो गए और हमें किसी रूहानी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस वाक़े ने उन पर एक गहरा और न मिटने वाला असर छोड़ा था। वह मजबूत और निडर इंसान जो कभी रात और अंधेरे से नहीं डरता था, अब मगरिब के बाद घर से निकलने से भी घबराता है। उन्होंने इस वाक़े के बाद टैक्सी चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया और अब वह रात के वक्त वीरान और सुनसान जगहों पर सफ़र करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वह रात उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा स्याह बाब है जिसे वह कभी फरामोश नहीं कर सके।